क्वेश्चन लिखो, what causes cramp, cramp in the muscles, in the muscles, in the muscles after exercise, after exercise or heavy physical work, or heavy physical work. आंसर लिखो इसमें। muscles during exercise muscles during exercise need need more oxygen during क्या लिखा, need more oxygen but during less supply of oxygen, but during less supply of oxygen, comma, they respire, respire, they respire anaerobically, anaerobically, and produce lactic acid and produce lactic acid and energy. And energy. Full stop. The accumulation of lactic acid, ACCUMULATION, ACCUMULATION. The accumulation of lactic acid in the muscles, causes muscles fatigue, FATIGUE, मसल्स फैटीग, ठीक है, फैटीग पढ़ते हैं इसको, फैटीग और क्रैम्प्स, फैटीग मीन्स होता है थकान, और क्रैम्प्स। अगली लाइन से लिखो, lactic acid that accumulates in muscles, accumulate in muscles in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, accumulate in the muscles के बाद कॉमा लगाना, आगे लिखना in the presence of oxygen breaks down into carbon dioxide and water, and water and water and hence कॉमा लगा के and hence gives us and hence gives us relief from cramps, from cramps.
क्वेश्चन लिखो। लिखो वाई it is advised to take a hot water bath or a massage after heavy physical work or exercise question mark। आंसर लिखो। इसमें आंसर लिखो। द accumulation of lactic acid in the muscles causes muscle cramps, muscle cramps, full stop। देखो occur muscle cramps occur due to accumulation of lactic acid in muscles when the muscles respire anaerobically while doing hard physical exercise while doing hard physical exercise। Full stop। hot water bath or massage hot water bath or massage improves improves the circulation of blood in the muscle improves the circulation of blood in the muscle। Full stop। Due to improved blood flow, comma, the supply of oxygen to the muscles increases. The supply of oxygen to the muscles increases. Full stop। This oxygen breaks down. This oxygen breaks down lactic acid into carbon dioxide and water comma, and hence gives us relief from cramp and hence gives us relief from cramp। तो दोनों ही क्वेश्चन देखो सेम थे, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा हमने ये इंक्लूड करा है कि भाई हॉट वाटर बात या मसाज से ऐसा होता क्या है, तो ब्लड फ्लो वाली जो बात थी हमने इसमें वो इंक्लूड कर दी है। बाकी तुम देखोगे काफी कुछ जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं दोनों में सेम ही है। तो क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट किया क्वेश्चन अभी कराया या फिर जो सेकंड वाला कराया वैसे ही पूछ सकते हैं। अब लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन, हेडिंग डालो डिफरेंशिएट बिटवीन या क्वेश्चन मान लो एरोबिक एंड
एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तुम्हें पता है जब भी हम डिफरेंस लिख रहे होते हैं क्या कहते हैं? कॉलम बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखोगे? एक साइड एरोबिक, ठीक है, और दूसरी साइड एनारोबिक। ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड के सामने ही सेकंड लिखना, ठीक है। ऐसे नहीं पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे 4 पॉइंट है, जल्दी से लिखना शुरू करो। एक साइड बनाओ एरोबिक, तो एरोबिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस रेस्पिरेशन comma oxygen is required in this respiration, comma oxygen is required। एनारोबिक में लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रेस्पिरेशन oxygen is not required, oxygen is not required। सेकेंड पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन aerobic respiration in aerobic respiration CO2 comma H2O H2O and energy are produced and energy are produced। anaerobic में second point, in this respiration इथेनॉल इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, और लगाओगे देखो एक साथ तो दोनों प्रोड्यूस नहीं होते, दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं। फर्मेंटेशन हो रहा है अगर ईस्ट में तो क्या होगा? एल्कोहल प्रोड्यूस होगा। और मसल सेल में अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड। तो इसमें इसलिए हम लिख रहे हैं इन दिस रेस्पिरेशन इथेनॉल और लैक्टिक एसिड कोमा H2O and energy are produced and energy are produced and energy are produced। थर्ड पॉइंट लिखो एरोबिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन थर्ड पॉइंट, it produces more energy it produces more energy per glucose molecule that is 38 ATP। कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा ये। It produces more energy per glucose molecule that is 38 ATP। सामने लिखो एनारोबिक में थर्ड पॉइंट, it produces less energy per glucose molecule that is 2 ATP। फोर्थ पॉइंट एरोबिक में लिखो, it is completed in cytoplasm and mitochondria of cell। It is completed in cytoplasm and mitochondria of cell। anaerobic में फोर्थ पॉइंट लिखो, it is completed in cytoplasm only। It is completed in cytoplasm only। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन ब्रीदिंग
डिफाइन ब्रीदिंग फुल स्टॉप, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करो। डिफाइन ब्रीदिंग फुल स्टॉप, आगे लिखो स्टेट, STAT स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो पहले क्योंकि इन्होंने बोला डिफाइन करो ब्रीदिंग को, तो पहले ब्रीदिंग की डेफिनेशन ही लिख देते हैं। तो आंसर में लिखो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल मैकेनिज्म, breathing is a physical mechanism in which an organism takes up breathing is a physical mechanism in which an organism takes up oxygen from the air and gives out CO2 and gives out CO2। अब उसी तरीके से दो कॉलम बनाओ जैसे एरोबिक एनाएरोबिक में बनाए थे। फर्स्ट वाले में लिखो ब्रीदिंग और सेकंड में लिखो रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगला पॉइंट लिखो ब्रीदिंग में सेकंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में सेकंड पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में सेकंड पॉइंट लिखो इट इन्वॉल्व्स exchange of gases, it involves exchange of gases along with along with oxidation of food, it involves exchange of gases along with oxidation of food। पहले इन दो पॉइंट की बात करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं ब्रीदिंग में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग सिर्फ यही है, यानी कि इनटेक करना O2 का ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, और एक्सेल कर देना, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना CO2। बस ये ब्रीदिंग है, ठीक है, जिससे हम नॉर्मली बोल देते हैं सांस लेना। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो ही रहा है, साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है फूड और हमें उससे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब एक फर्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है, ब्रीदिंग को बोल रहे हैं फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन को बोल रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे मुझे बताओ ये फिजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है और क्यों इसमें लिखा गया है कि ये तो फिजिकल है और रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल है। इसका आंसर दो मुझे, कौन बताएगा। ब्रीदिंग को फिजिकल प्रोसेस लिखवा रखा है मैंने तुम्हें और रेस्पिरेशन को बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसा क्यों, बताएगा कोई। यशवंत, हाँ कि ना। तो देखो समझो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में जो हमारे सेल हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। और कैसे कैसे हुआ, किसमें हुआ, वो तो हमें पढ़ के पता चला है। अगर मैं बात करूं आज से पहले तुम्हें पता था क्या ऐसा होता है, जिसने पढ़ा होगा शायद उसे पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसे नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है, हम इसे देख तो नहीं पा रहे ना। या फिर जब ये काम हमारी बॉडी में हो रहा है हमें कुछ अलग फील हो रहा हो, ठीक है,
सपोज करो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुवेट में, तो तुम्हें पता चल रहा है हाँ इस टाइम हो रहा है और इस टाइम नहीं हो रहा। ठीक है, अब इतना हो चुका है, एक मॉलिक्यूल हो चुका है, अभी एक मॉलिक्यूल और होगा, नहीं ना। तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेल वगैरह का। समझ रहे हो? बायो का मतलब ही क्या है, जहाँ पे हम ये सेल टिश्यू ये सब पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में क्या है, जो हमें फील होता हो, ठीक है, जिसे हम देख सकें और या फिर उसे फील कर सकें, वो फिजिकल प्रोसेस है। क्लियर है? तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये बताओ ब्रीदिंग के टाइम पे हमें फील हो रहा है? तुम्हें पता है कि कब तुम ऑक्सीजन ले रहे हो और कब तुम CO2 छोड़ रहे हो, या तुम्हें नहीं पता चलता है? बताओ। हाँ? सब पता चलता है। पता चलता है ना। तुमने डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जब तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है, स्टेथोस्कोप यूज कर रहा होता है, तो कहता है ब्रीद इन ब्रीद आउट। या योगा कर रहे होते हो तो तुम्हें पता है, यानी जो तुम्हारी ब्रीदिंग है उसको तुम रोक और छोड़ सकते हो। कई बार होता है ना कि भाई सांस रोक लो, तो वो कर पा रहे हो, तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सेल के अंदर हो रहा है, सेल इन्वॉल्व हो गया उसमें। तो बस ये डिफरेंस है कि इसे फिजिकल प्रोसेस क्यों बोला जा रहा है और इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो ब्रीदिंग में, और ये लास्ट पॉइंट है। इट इन्वॉल्व्स द लंग्स, इट इन्वॉल्व्स द लंग्स। अब हमें पता है कि भाई अगर हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाती है उसके बाद? लंग्स में। तो इसलिए हमने लिख दिया इट इन्वॉल्व्स द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी एक वर्ड लिखा हमने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो हमने क्या लिखा, जो लंग्स हैं वहां पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। यानी कि एक बात और हमें यहाँ पे पता चल गई है कि जो CO2 और O2 है, उसका एक्सचेंज लंग्स में होता होगा। ऐसे ही कुछ होता होगा ना, कि भाई लंग्स तक CO2 गई, ठीक है, और लंग्स में से जब लंग्स में O2 गई तो फिर ये ऑक्सीजन क्या है, ब्लड में चली जाएगी, और यहीं से क्या है, ब्लड के थ्रू क्या आ रहा होगा, CO2। तो CO2 कहाँ पे आ गई? लंग्स में आ गई। तो यानी कि लंग्स ही इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। रेस्पिरेशन में लिखो थर्ड पॉइंट, along with lungs it involves it involves the mitochondria of the cells where oxidation of food takes place, where oxidation of food takes place। ठीक है, तो ये हो गया, देखो डिफरेंशिएशन हमने कर दिया यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को। सही हो गया। अब हेडिंग डालो ATP। क्या लिखोगे? ATP, वही कैपिटल में। पहले लिखवा रहा हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। रेस्पिरेशन जब स्टार्ट किया था हमने, वहां पे तुम्हें थोड़ा सा बताया भी था ATP। तो दोबारा से अच्छे तरीके से देख लेंगे, इसलिए थोड़ा लिख लो पहले शुरू में। तो हेडिंग डाली तुमने ATP, ATP, और इसके बराबर में लिख देना एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है इसको, ATP को। क्यों बोला जाता है एनर्जी करेंसी? करेंसी क्या होता है? किसी भी कंट्री में, ठीक है, एक करेंसी होती है और उस करेंसी का यूज करके हम चीजों को खरीद रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी ATP उसी तरीके से है, यानी कि ये करेंसी है एनर्जी के लिए। जितनी ज्यादा करेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा तुम कुछ खरीद पाओगे। समझ रहे हो? तो इसलिए इसे एनर्जी करेंसी बोला जा रहा है, यानी कि जो एनर्जी है वो इसी के थ्रू हमें मिलती है, ATP के थ्रू। तो इसमें पॉइंट लिखते रहना, वही डॉट बना बना के, 1 2 3 मत लिखना, ठीक है। तो पहला जो डॉट है, पहला पॉइंट है, उसमें लिखो द एनर्जी प्रोड्यूस
The energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules. The energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body, in the cells of the body, and and used by organism as when required, and used by organism as when required. और जब ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती है वो इसका यूज कर लेता है। सेकंड पॉइंट लिखो, एडीपी, एडीपी ब्रैकेट में लिखो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट, वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये फुल फॉर्म बताओ एडीपी की या फिर एटीपी की। तो लिखो एडीपी ब्रैकेट में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, लिखो आगे, एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट, एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट, CONTENT, इसके पास जो एनर्जी होती है एडीपी के पास वो कम होती है। यानी एडीपी का एक मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू एटीपी काफी कम एनर्जी पोजेस करता है, यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी होती है। आगे लिखो, फुल स्टॉप, इन इन बल्कि ऐसे लिखो, इन मत लिखो, ये लिखो ऑर्गेनिक फॉस्फेट, फुल स्टॉप के बाद ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और इसका जो सिंपल होता है, सिंबल वो होता है PI, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेना। थोड़ा ऐसे लिखते हैं उसमें, ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ATP, ATP, टी नहीं बोल रहा हूं मैं, टी बोल रहा हूं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दोबारा से मैं तुम्हें बोल देता हूँ, क्या लिखा तुमने? एडीपी, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, आगे क्या लिखा? एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट, क्लियर है। फिर क्या लिखा तुमने? कॉमा लगा के लिखना, फुल स्टॉप मत लिखना, कॉमा लगा के लिखो। फिर ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एटीपी are the substance are the substance present inside a cell, are the substance present inside a cell। तो ये तीनों ही चीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एडीपी, ऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग respiration, during respiration is
The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. तो देखो क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे नहीं होता कि एकदम से 38 एटीपी बन गए। ये एक प्रोसेस चल रहा होता है। जो तुम्हारा ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, अब ऑक्सीजन जब आती है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, एक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही होती है मॉलिक्यूल्स में। यानी तुम ऐसे समझो कि तुम उसको एक तरीके से किसी चीज में स्टोर करके रख रहे हो। एनर्जी निकली, तुमने इकट्ठी करी, स्टोर करके रख दिया, एनर्जी निकली, इकट्ठी करी, स्टोर करके रख दिया, इस तरीके से कर रहे होते हो। तो एक ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में और ये कन्वर्ट हो जाता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहे होते हैं। अब हमने बात करी कि भाई तीनों के तीनों हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और पीआई, इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी हैं, ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जो एनर्जी, यहाँ पे देखो, कुछ भी प्रोसेस विदाउट एनर्जी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो उससे जो एनर्जी मिल रही होती है, उस एनर्जी का यूज करके, ठीक है, ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। यानी एडीपी प्लस पीआई जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और बना देता है क्या, क्या बना देता है, एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना देता है। क्लियर है, जो कि क्या है, हाई एनर्जी कंटेंट है जिसके पास। तो यहाँ पे तुम एक रिएक्शन लिखोगे जो इन्वॉल्व हुई है, क्या, एडीपी, जिसके पास क्या है, एक लो एनर्जी है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या फिर सिंपल फॉस्फेट भी लिख सकते हो, है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही, चाहो तो पूरा लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों मिल जाते हैं, प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आई, फ्रॉम रेस्पिरेशन, फ्रॉम रेस्पिरेशन। क्लियर है, इसके बाद एरो लगाओगे तुम, साफ नहीं लिख देना, मैं इधर लिख रहा हूँ एटीपी, और एटीपी के पास क्या है, हाई एनर्जी है। ये रिएक्शन लिखो जल्दी से। तो देखो अब क्या होता है, यही जो एटीपी है, जो स्टोर, ये जो एनर्जी है, स्टोर हो गई किसमें, एटीपी में। ठीक है, किसमें स्टोर हो गई, एटीपी मॉलिक्यूल्स में। अब इसी एटीपी का यूज करती है हमारी बॉडी सेल फॉर वेरियस पर्पसेस। लाइक देखो, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो गया, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जो हमारी नर्व्स हैं जो मैसेज भेज रही होती हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी बहुत सारे प्रोटीन बना रही होती है, तो उनको बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और बहुत अलग एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में सेल में हो रही होती है, उस सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, एटीपी से। कैसे मिलती है, देखो, अभी तो हमने देखा कि भाई सेल में एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो एनर्जी मिली रेस्पिरेशन से वो ही कंबाइन करेगी इनको और क्या बना देगी, एटीपी। अब इस एटीपी का ब्रेक डाउन हो रहा होता है जब हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब सारी की सारी एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो गई। क्लियर है, तो अब देखते हैं, देखो कैसे इसका ब्रेक डाउन होगा। तो लिखो अगले पॉइंट में, व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी,
energy, comma, then ATP can be broken down, then ATP can be broken down using water to release energy. तो जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन, तो एटीपी को ब्रोकन डाउन किया जा सकता है बाय यूजिंग वाटर, वाटर का यूज करते हुए। वाटर तो है ही सेल के पास, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा गाढ़ा एक लिक्विड टाइप होता है उसमें, ठीक है। यानी कि उसमें वाटर की तो हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है, तो उसका यूज करते हुए एटीपी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। किसमें, तो देखो एटीपी वापस ब्रेक डाउन हो जाती है एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, क्लियर है, प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, फॉर यूज इन सेल। जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट होगी, जो भी फंक्शन सेल कर रहा होगा, ठीक है, तो वो उस टाइम पे एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, क्लियर है। तो अब हमें क्या है, एनर्जी मिल रही होती है, और ये एनर्जी क्या है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है जब हम एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, क्लियर है। अब तुमने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी कि भाई एडीपी जो कि क्या है, एक लो एनर्जी कंटेंट है जिसके पास, एटीपी जिसके पास हाई एनर्जी कंटेंट है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल में। तो अब तुम्हें समझ आया होगा तीनों सेल में कैसे प्रेजेंट है। देखो एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी प्लस फॉस्फेट मिल जाता है और एनर्जी मिल जाती है, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एटीपी बन जाता है। तो एक तरीके से साइकिल है, ये चलती रहती है, ठीक है। इनको मिलने से क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, और जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी मिल रही होती है और एडीपी और फॉस्फेट मिल रहा होता है। फिर ये अगले बारी में जब भी रेस्पिरेशन हो रहा होगा, कंटिन्यूस होता रहता है, तो कुछ एनर्जी लेके रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी मिलेगी, एडीपी और फॉस्फेट कंबाइन हो जाता है और वापस एटीपी बना देगा। अब एनर्जी दोबारा स्टोर हो गई, अब सेल को जब भी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो ब्रेक डाउन कर देगा एटीपी का। कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से पूछो। पूरा रेस्पिरेशन हो चुका है, मतलब यहाँ तक नॉर्मली एरोबिक एनारोबिक। कोई डाउट है, जल्दी से बोलो। नो हाँ, सर, समझ आया ना, नो देखो सर। समझ आया ना, रेस्पिरेशन क्या होता है, यस क्या यस क्या सर। होता है। कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ चीज तुम्हें नहीं समझ आ पाई हो। हाँ, एटीपी एडीपी सब समझ आ गए, कहाँ पे होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, बोलो। यस ठीक है, बाकी फिर